આજનો આ કાર્યક્રમ ખૂબ સરસ રીતે જે છે આપણે પૂર્ણ કરીએ અને આપણે હસી મજાક આનંદ પ્રમોદ બાળકોમાં રહેલી શક્તિને બહાર લઈ આવી છે તો આવો આપણે સાથે સાથે આનંદ પણ કરીએ અને શ્રી ગુજરિયા વિશાલ અને ડોડિયા જયદેવ સ્ટેજ ઉપર આપણી સમક્ષ જે છે રજૂ થાય છે અને હવે સાથે સાથે પધારેલા વાલીગણ અને મહેમાનોનું શબ્દો દ્વારા સ્વાગત માટે હું શ્રી ભીખુભાઈ સોની ટ્રસ્ટીશ્રીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શબ્દો દ્વારા સ્વાગત કરે। હુડગે પ્રેમકુમાર સાહેબ અને તેમની સાથે પધારેલા તમામ મહેમાનો જે છે તેમનું પણ હૃદયપૂર્વક હું સ્વાગત કરું છું અને આ સંસ્થાના ટ્રસ્ટી ભાઈ શ્રી ભીખુભાઈ સોનીને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ પધારેલા મહેમાનો અને વાલીગણનું શબ્દો દ્વારા સ્વાગત કરશે। શ્રી ભીખુભાઈ સોની ટ્રસ્ટી શ્રી વિવેકાનંદ શૈક્ષણિક સંકુલ તાલાળા। नमस्कार। वंदनीय परम पूज्य माधवराय महाराज श्री तथा अतिथि विशेष हुगड़े प्रेमकुमार साहेब तथा पोरबंदर थी पधारेला स्टाफ मित्रों तथा तालुका प्रमुख श्री नरसिंह भाई तथा मंचस्थ महानुभावों आमंत्रित मेहमानों तथा पधारेल वालीगण तेमज अमारी शाळाना टमकता तारलिया एवं विद्यार्थी भाईओ तथा बहनों, हूँ अमारी शाळा श्री विवेकानंद शैक्षणिक संकुल में उजवाता प्रथम वार्षिक महोत्सव में आप सर्वेश्रीनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विशेष कहीं न कहता हूँ मारू व्यक्तित्व पूरे करूँ छूँ। जय हिंद, जय भारत। खूब खूब आभार भाई श्री भीखुभाई। शब्दों द्वारा स्वागत बाद आपने पुष्पनी પાંખડીઓથી પણ મહેમાનોનું સ્વાગત કરશું અને બહુ ઝડપથી સ્વાગત વિધિનો કાર્યક્રમ જે છે આપણે પૂર્ણ કરીશું। સૌપ્રથમ આજના સમારંભના અધ્યક્ષ શ્રી હુડગે પ્રેમકુમાર સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે તો હું વિનંતી કરીશ શ્રી ભીખુભાઈ સોની ટ્રસ્ટીશ્રીને કે તેઓ તેમનું पुष्पगुच्छ द्वारा हारतोरा द्वारा स्वागत करशे। श्री हुड़गे प्रेमकुमार साहेब अध्यक्ष श्री आजना समारंभना राजाभाई पण आपनी वच्चे उपस्थित छे तेओनुं पण हृदयपूर्वक स्वागत छे। श्री हुड़गे प्रेमकुमार साहेब ने विनंती के तेओ स्टेज पासे पधारे। प्लीज वेलकम। मित्रों आजना समारंभना अध्यक्षश्रीનું સન્માન થઈ રહ્યું છે તેમનું પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સ્વાગત થઈ રહ્યું છે। જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટથી આપણે તેમને વધાવીએ। છેક પોરબંદરથી જવાહર નવોદય વિદ્યાલયમાંથી પધાર્યા છે આપણી વચ્ચે તેમનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત। શ્રી લખુભાઈ સોની વેરાવળથી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે તેમને વિનંતી કરીશ કે તેઓનું પણ પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવશે અને તેમનું સ્વાગત કરશે ભાઈ શશિકાંતભાઈ ભંડેરી। ત્યારબાદ પોરબંદર નવોદય વિદ્યાલયથી પધારેલા શ્રી ઓરિયા સાહેબનું સ્વાગત કરશે પરેશભાઈ સોની। ત્યારબાદ શ્રી અખિલેશસિંહ ત્રિપાઠી તેઓ પણ પોરબંદરથી પધારેલા છે તેઓનું સ્વાગત કરશે ઘનશ્યામભાઈ વગાસિયા। ત્યારબાદ શ્રી ઉમેશ સિંહ તેઓ પણ પોરબંદરથી પધાર્યા છે તેઓને વિનંતી કે તેઓનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ। શ્રી રમણીકભાઈ પાદરિયાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ તેમનું પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સ્વાગત કરે। ત્યારબાદ શ્રી શૈલેન્દ્રશ્રી બિરાદરજી તેઓ પણ પોરબંદરથી પધાર્યા છે તેમનું પણ સ્વાગત કરશે ભાઈ શ્રી અશોકભાઈ હિરપરા। ત્યારબાદ શ્રી નરસિંહભાઈ રામાણી પ્રમુખ શ્રી તાલુકા પંચાયત તેઓનું સ્વાગત કરશે ભાઈ શ્રી દુર્લભભાઈ હિરપરા। શ્રી નરસિંહભાઈ રામાણી।
શ્રી નરસિંહભાઈ રામાણીનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. સ્વાગત કરે છે શ્રી દુર્લભભાઈ હિરપરા સાહેબ. ત્યારબાદ શ્રી દિનેશભાઈ કારેલિયાનું સ્વાગત કરશે ભાઈ શ્રી દિલીપભાઈ ગદેસરિયા. દિવ્યેશભાઈ કારેલિયા. દિવ્યેશભાઈ કારેલિયાનું સ્વાગત કરશે ભાઈ શ્રી દિલીપભાઈ ગદેસરિયા. આનું કોણ કરશે? રાજાભાઈનું. કોણ કરશે? કોણ કરશે? શ્રી રાજાભાઈ ચારિયાનું સ્વાગત કરશે ભાઈ શ્રી અશ્વિનભાઈ. રાજાભાઈ ચારિયા. સ્વાગત બાદ મિત્રો આપણે બધા જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે એવા બાળકોના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ તરફ આપણે આગળ ધપી રહ્યા છીએ. એ પહેલા માત્ર 2-3 મિનિટ માટે થઈને છેક પોરબંદર થી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે અને આજના સમારંભના અધ્યક્ષ શ્રી પ્રેમકુમાર હુડગે સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. તો તેમને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજના પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરશે. શ્રી પ્રેમકુમાર હુડગે સાહેબ. અને ત્યારબાદ આપણે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ જે છે એ શરૂ કરવા જઈશું. તો આજના સમારંભના અધ્યક્ષ શ્રી હુડગે પ્રેમકુમાર સાહેબ કે જેઓ અધ્યાપક જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પોરબંદર થી પધાર્યા છે તેઓ પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરશે. શ્રી પ્રેમકુમાર હુડગે સાહેબ. जय श्री हरि. पूज्यपाद श्री माधवराय जी महाराज श्री विवेकानंद शैक्षणिक संकुल के ट्रस्टी श्रीमान दुर्लभ भाई हिरपरा, श्रीमान भिखू भाई सोनी, श्रीमान भूपत भाई हिरपरा, श्रीमान शशिकांत भंडेरी, इस तालाला नगर के गण्यमान्य नागरिक एवं देवियों एवं सज्जनों, सर्वप्रथम मैं यह बात कहना चाहूंगा कि आप सभी ने मुझे यहां आने का जो आमंत्रण दिया, मुझे अध्यक्ष बनने का जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं. इसके बाद मैं अपनी ओर से कुछ कहना चाहूंगा कि यह एक शैक्षणिक संस्थान है, यह एक विद्या मंदिर है, विद्या देवी सरस्वती का मंदिर है और यहां पर ज्ञानार्जन होता है. परंतु उसका सही जन्म तभी होता है जब वह ज्ञानार्जन करता है. ज्ञान के माध्यम से मनुष्यत्व को प्राप्त करता है. इसी सर्वस्यामेव दानानां विद्यादानं विशिष्टते, अर्थात दान तो कई प्रकार के हैं. गोदान है, कन्यादान है, वस्त्रदान है, जलदान है, अन्नदान है, परंतु सभी में विशिष्ट स्थान जो प्राप्त हुआ है वो विद्यादान को प्राप्त हुआ है. और इसीलिए कहा गया है कि सर्वस्यामेव दानानां विद्यादानं विशिष्टते, अर्थात विद्या का दान जो है सर्वोत्तम माना गया है, इसका विशिष्ट स्थान है. और इसी प्रकार विद्या के माध्यम से गुरु जो है, गुरु शिष्य का जो संबंध है वो अतिशय उत्तम संबंध है. उसके संदर्भ में कहा गया है कि एक दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट. गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट. अर्थात ये कहा गया है कि गुरु एक कुम्हार के समान है, कुंभकार के समान है. गुरु क्या करता है कि जिस प्रकार कुम्हार एक घड़े को सही आकार देता है और घड़े के भीतर हाथ रख करके सहारा देकर उसको सही आकार देता है, उसी प्रकार गुरु भी
एक कुम्हार की भांति शिष्य को एक सही सही आकार देने का प्रयत्न करता है, और शिष्य में जो भी त्रुटियां पाई जाती हैं, जो दोष पाए जाते हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए कभी कभी जिस प्रकार मिट्टी के घड़े को बाहर से पीटना पड़ता है, उस प्रकार अंदर हाथ का सहारा देकर बाहर से वो पीटता है। इसी संदर्भ में मैं और एक कबीर का दोहा सुनाना चाहूंगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहा जाता है अपनी हिंदू संस्कृति के अनुसार, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। परंतु गुरु का स्थान, गुरु के बारे में बताया है कि गुरु और गोविंद दोनों को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए तो मैं सिर्फ गुरु के ही चरण छूंगा, क्योंकि अर्थात यहां पर यह बताया गया है कि गुरु का महत्व भगवान से भी अधिक बताया गया है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग हमें गुरु ही बताते हैं। उसके बाद दूसरा है, सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र का मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के बारे में बताया है, सब धरती कागज करूं। अगर हम सारी धरती को कागज बनाते हैं और बन राय अर्थात सारे वन जंगल को अगर हम लेखनी बनाए, कलम बनाए, और सात समुद्र की मसी करूं, अर्थात जितने भी सात समुद्र हैं उनकी स्याही की जाए और उससे अगर लिखा जाए तो भी गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता है। ऐसा गुरु के बारे में कहा है। और जिस प्रकार कबीरदास जी ने बताया है कि हम जो भक्ति करते हैं वो दिखावे की भक्ति हमें नहीं करनी चाहिए, दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है। उस संदर्भ में एक दोहा है, माला फेरत जुग गया, मिटान मन का फेर, माला फेरत जुग गया, मिटान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि हम दिखावा करते हैं, माला फेरते हैं, कहते हैं राम 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 राम, और हमारा ध्यान कहीं दूसरी ओर होता है, कहीं सिनेमा घर में होता है, तो कहीं किचन में होता है, तो कहीं और स्थान पर होता है। ऐसी भक्ति किस काम की? हमें तो अपने मन को बदल देना चाहिए। कर का मन का डारी दे, हम हाथ में जो माला फेरते हैं उसको फेंक दो, उसको फेंक दो, मन का फेर, अर्थात हमें हृदय से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सच्ची भक्ति करनी चाहिए। उसके बाद मैं छात्र छात्राओं को, अपने विद्यार्थियों को सदा कहता रहता हूं, इस जीवन में चाहे आप जो भी कुछ बने वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपने जीवन में एक सच्चा इंसान बनना है। सच्चा इंसान अगर आप बनते हैं तो फिर चाहे आप जिस किसी पद पर हैं वो सही है, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मंत्री बने, आईएएस ऑफिसर बने, यदि आप में मनुष्यत्व नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसी संदर्भ में रहीम का एक दोहा है, हाँ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि पानी का जो है बड़ा महत्व है। यहाँ मनुष्य के संदर्भ में पानी का महत्व है, मनुष्य की प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, इज्जत। मोती के संदर्भ में है चमक, मोती की चमक, और आटे के संदर्भ में